So end product of glycolysis is 2 molecule of pyruvic acid, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH2. Okay. Now what happens to this pyruvic acid? This pyruvic acid now enters matrix of mitochondria through a transmembrane protein and undergoes oxidation, that is oxidative decarboxylation, to form a 2 carbon compound, that is acetyl coenzyme A. माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इनवर्ट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस ही मूव कर सकते हैं, तो पायरुविक एसिड को अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. So what happens? Pyruvic acid synthesized in glycolysis enters matrix of mitochondria through transmembrane protein and undergoes oxidative decarboxylation to form 2 carbon acetyl coenzyme A. Okay. Oxidative decarboxylation. Oxidation and decarboxylation both occur simultaneously. Oxidation is removal of hydrogen and decarboxylation is removal of carbon dioxide to form acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme A that is formed, this acetyl coenzyme A now enters Krebs cycle. So this is the connecting link between glycolysis and Krebs cycle. That is why this reaction is known as link reaction or gateway reaction. So what happens? Acetyl coenzyme A, coenzyme A को short में CoA, that is coenzyme A enters Krebs cycle. This enters Krebs cycle, thus this reaction is known as, link reaction or gateway reaction. इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन. Thus this reaction is referred to as link reaction or gateway reaction. So pyruvic acid synthesized in glycolysis enters which part? Matrix of mitochondria through transmembrane protein and undergoes which reaction? Oxidative decarboxylation to form acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme में now enters Krebs cycle. तो ये Krebs cycle की beginning करेगा, इसलिए इस reaction को क्या कहा जाता है? Glycolysis और Krebs cycle के बीच का part है, इसलिए इसे link reaction और gateway reaction भी कहा जाएगा. ठीक है, कहाँ आकर करेगा? Matrix of mitochondria. What happens? Pyruvic acid plus NAD जो hydrogen acceptor होगा plus coenzyme A in presence of enzyme forms acetyl coenzyme A plus CO2 यानी decarboxylation, carbon dioxide is released, plus dehydrogenation, hydrogen is released, that is oxidation. Release of hydrogen is also oxidation. It occurs the enzyme, यहाँ पे जो भी नाम लिखने में यहाँ पे लिख रही हूँ, एंजाइम कौन सा? पायरुवेट dehydrogenase. This is one of the most complex enzyme जो 72 polypeptides का बना हुआ है.
This process requires magnesium, lipoic acid, and TPP. TPP का full form thiamine pyrophosphate. Okay, this is the second step, that is oxidation of pyruvic acid. बस इतना सही है. Pyruvic acid माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इट अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेशन भी होगा, that is removal of hydrogen. Decarboxylation is there, that is removal of CO2 and forms a 2 carbon compound. This is 3 carbon compound. 2 carbon compound. This 2 carbon compound acetyl coenzyme now enters the third part, that is Krebs cycle. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा? वो यहाँ कुछ नहीं करेगा. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ओके, थर्ड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल. ये लिख लिया ना सबने? पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है. देखो ये स्टेप जो रिएक्शन होता है ना, ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये 3 स्टेप वाला रिएक्शन है. तो अब 11th में अपन इतनी डिटेल नहीं पढ़ते. ये जो तुम लोग ने वर्ड पढ़ा था को एंजाइम एंड को फैक्टर्स वर्ड पढ़े थे ना एंजाइम वाले चैप्टर में. तो ये पाइरुविक एसिड, सॉरी मैग्नीशियम आयन, लाइपोइक एसिड एंड टीपीपी, ये को फैक्टर्स होते हैं इस एंजाइम के, जो अलग अलग स्टेजेस पे फंक्शन करते हैं और हेल्प करते हैं. ओके, थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल. नेक्स्ट स्टेप इज क्रेब्स साइकिल. किसने डिस्कवर की थी क्रेब्स साइकिल? डिस्कवर्ड बाय हेंस क्रेब, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रेब साइकिल. कहाँ अकर करती है? अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? फर्स्ट रिएक्टेंट कौन है? विल ड्रॉ द साइकिल आल्सो इन डिटेल. पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चंस आते हैं वी आर राइटिंग दोस. साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? फर्स्ट रिएक्टेंट इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड. फर्स्ट रिएक्टेंट इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड. ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन. ये क्वेश्चन भी आया है. फर्स्ट रिएक्शन और रिएक्टेंट ऑफ द साइकिल इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड व्हिच इज 4 कार्बन कंपाउंड. फर्स्ट रिएक्टेंट इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड व्हिच reacts with 2 carbon acetyl coenzyme to form first stable compound 6 carbon citric acid. फर्स्ट रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सालो एसिटिक एसिड है. फर्स्ट रिएक्टेंट इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड व्हिच रिएक्ट्स विद 2 carbon acetyl coenzyme to form first stable compound which is 6 carbon citric acid, hence also known as citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. इसको शॉर्ट में TCA साइकिल भी लिखते हैं. देखो इस साइकिल का ये
किसने डिस्कवर किया? हेंस क्रेब ने। कहां पे होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट रिएक्टेंट इज 4 कार्बन oxaloacetic acid which reacts with 2 carbon acetyl coenzyme में 4 carbon and 2 carbon. A first stable compound that is formed is 6 carbon citric acid. Hence the cycle is also known as citric acid cycle, and this citric acid is a tricarboxylic acid. That is why this is also known as tricarboxylic acid cycle. Okay. All enzymes for Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria, except which enzyme? Can you name that enzyme? Yes, it is succinate dehydrogenase. Yes, it is succinate dehydrogenase. And ये कहाँ present है? Inner membrane में present होता है. ठीक है? All enzymes for Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria. So all enzyme for Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria, except enzyme. Except which enzyme? Except enzyme succinate dehydrogenase. Except which enzyme? Except enzyme succinate dehydrogenase, which occurs in inner membrane. Except enzyme succinate dehydrogenase, which occurs in inner membrane. So all enzymes. Krebs cycle also called aerobic respiration. Krebs cycle is also called as amphibolic pathway. Respiration के लिए आगे क्या लिखा था? Catabolic लिखा है. We have written a word. It is catabolic. Now I'll say that it is amphibolic. How? Because respiration में specially Krebs cycle intermediates जो भी होते हैं, these intermediates, I'll be writing that. These intermediates are used for synthesis of different types of biomolecules. I'll be writing that. That is why it is known as amphibolic pathway. यहाँ तक लिखा? Okay. Now Krebs cycle is also referred to as amphibolic pathway. Krebs cycle. Why it is known as amphibolic? Krebs cycle is also known as, देखो क्वेश्चन आए क्रेब साइकिल तो विल प्रेफर, अगर रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन को भी प्रेफर करेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे की तरह. क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज amphibolic pathway. Amphibolic means both catabolic and anabolic. That is amphibolic. So Krebs cycle is also known as amphibolic pathway, as breakdown occurs. ब्रेकडाउन हो रहा है इसलिए ये क्या है? कैटाबॉलिक. As breakdown occurs, so it is catabolic, and different intermediates synthesized in the pathway. Different intermediates synthesized in pathway are used for formation of or synthesis of other biomolecules. Are used for synthesis of other biomolecules. So what happens? Krebs cycle is also known as amphibolic pathway. Why it is known as amphibolic pathway? Because it is both catabolic and anabolic. It is catabolic because breakdown is occurring. It is anabolic because this पूरे pathway में we'll be reading about different compounds, like you have read one intermediate, ये पहले पढ़ चुके हैं, alpha ketoglutaric acid. This alpha ketoglutaric acid is used for synthesis of
glutamic acid. It is used for synthesis of glutamic acid. ये क्रेब साइकिल इंटरमीडिएट है जिससे अमीनो एसिड बनता है, यानी जब भी अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी क्रेब साइकिल से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी यूज अप होगा and glutamic acid will be synthesized. Then acetyl coenzyme A, इससे फैटी एसिड बनता है. फैटी एसिड बनाने के लिए इसे विड्रॉ करेंगे. हार्मोन कॉल्ड गिबरेलिन इज सिंथेसाइज्ड. सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ये भी इंटरमीडिएट पढ़ेंगे. दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. ये इंटरमीडिएट्स अलग अलग, ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ये इंटरमीडिएट्स अलग अलग कंपाउंड्स के या बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस में यूज अप भी होते हैं. इसलिए क्रेब साइकिल को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं. अगर क्वेश्चन में क्रेब साइकिल नहीं है और रेस्पिरेशन है, बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक है, तो यू हैव टू गो विद बोथ. इट इज कंसिडर्ड टू बी एम्फीबॉलिक बिकॉज मेन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज क्रेब साइकिल. ओके, so why amphibolic, is that clear? एनसीईआरटी में क्रेब साइकिल के एरोबिक दिया हुआ है क्योंकि क्रेब साइकिल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता. इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन मींस क्रेब साइकिल एंड ईटीएस because glycolysis is common pathway for both aerobic and anaerobic respiration. Both catabolic and anabolic can be called metabolic or amphibolic. देखो metabolic processes means catabolic and anabolic, इन सबको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं. कुछ प्रोसेस सिर्फ कैटाबॉलिक होते हैं, कुछ प्रोसेस सिर्फ एनाबॉलिक होते हैं. कुछ प्रोसेस लाइक दिस आर बोथ कैटाबॉलिक भी है एनाबॉलिक भी, तब उन्हें एम्फीबॉलिक कहेंगे. ठीक है, ये लिख लिया बिकॉज मैं साइकिल बनाऊंगी तो आई नीड द स्पेस. Marker enzyme, mark up, it's mark. Okay, you can write. Yeah, I'm waiting. Do it first. पहले मैं साइकिल ड्रॉ कर देती हूँ, फिर तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी. देन आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू ड्रॉ द साइकिल. पहले समझ लेना उसको, देन यू ड्रॉ. डन. देखो what happens. Pyruvic acid. मैं पहले पूरा लिख देती हूँ एक बार, फिर तुम लोग को समझ में आएगा इजीली. देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है लिंक रिएक्शन. पायरुविक एसिड से एक CO2 बाहर रिलीज हुआ और हाइड्रोजन रिलीज हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ. NAD ने हाइड्रोजन लिया, NADH2 बन गया. This is link reaction and formation of acetyl coenzyme may occur. Oxaloacetic acid 4 carbon compound reacts with 2 carbon acetyl coenzyme to form first stable 6 carbon compound, that is citric acid. That is why the cycle is known as citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. Okay, citric acid now forms isocitric acid, then it forms oxalosuccinic acid. जब ये oxalosuccinic acid का formation होगा, again dehydrogenation occurs. NAD is reduced to
NADH2. किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से किसका फॉर्मेशन? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. इस स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन होगा. 1 CO2 इज रिलीज्ड. मतलब ये सब 6 कार्बन कंपाउंड है. ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन भी. ऑल 6 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब साइकिल आर दिस. एक CO2 निकल गया तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अब कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड है. ओके, मैं एक बार फिर से समझाऊंगी पूरा, इफ नॉट क्लियर. देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म्स सक्सिनाइल कोएंजाइम. ये जो कोएंजाइम यहाँ रिलीज होगा ना, वो यहाँ पे यूज हो जाता है. ठीक है, इस स्टेप में दो चीजें एक साथ होंगी. डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यानी एक CO2 निकला, और डी हाइड्रोजनेशन भी होगा. मींस हाइड्रोजन इज रिलीज. दैट हाइड्रोजन इज टेकन बाय NAD टू फॉर्म NADH2. सिर्फ दो रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन मींस ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन आपका साइमल्टेनियसली. राइट. अगर एक CO2 निकल गया तो अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड हुआ. दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू सक्सिनिक एसिड. जब ये सक्सिनिक एसिड फॉर्म करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी कौन लेगा? GDP. जैसे ADP होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिमिलरली GDP is guanosine triphosphate. It takes the energy and it forms GTP. But energy currency of cell क्या है? ATP. तो NCERT में स्टेटमेंट लिखा हुआ है. In a coupled reaction, this GTP gives the energy to ADP and inorganic phosphate and it results in formation of ATP. तो एंड में जो रिलीज होगा वो क्या होगा? ATP होगा. Succinic acid is then converted to fumaric acid. इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है ना, वो एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज. यहाँ पे जो एंजाइम है, जहां भी सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज होगा, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन रिमूव करेगा. बट यहां पर हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? FAD is the hydrogen carrier forming FADH2 instead of NAD because the enzyme is associated with FAD complex. Okay, fumaric acid. Spelling clear है? नहीं? I'll write it again. Fumaric acid. Fumaric acid से किसका formation? Malic acid. And malic acid forms oxaloacetic acid. जब oxaloacetic acid बनेगा तब again the hydrogen released is accepted by. ठीक है, अब पहले सुनना, या पहले सुन लो एक बार, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ और जितने भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चन, देन आई गिव यू टाइम, प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ द साइकिल. फाइन. नाउ पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है. और रेस्पिरेशन में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगा. तो पहले रिंग रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है. फर्स्ट रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड व्हिच इज 4 कार्बन कंपाउंड. इट कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइम में टू फॉर्म 6 कार्बन सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. ये पहला स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल. एंड सिट्रिक एसिड इज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज TCA साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ओके, सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड. आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाएगा तो डीहाइड्रोजनेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स इन टर्म्स ऑफ डीहाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजन रिलीज हुआ, किसके पास गया? NAD के पास. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बन गया. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ये तीनों 6 कार्बन कंपाउंड है. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड क्या फॉर्म करेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. इस वक्त डी कार्बोक्सिलेशन होगा, अ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. सो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज अ 5 कार्बन इंटरमीडिएट. राइट.
Alpha ketoglutaric acid now forms succinyl coenzyme A. Alpha ketoglutaric acid से किसका formation? Succinyl coenzyme A. In this step, both decarboxylation, a carbon dioxide is released, and dehydrogenation or oxidation occurs, and NAD is the hydrogen acceptor. So succinyl coenzyme A onwards, ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड, एक 5 कार्बन कंपाउंड, बाकी सारे 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. सक्सिनाइल कोएंजाइम में से किसका फॉर्मेशन हुआ? सक्सिनिक एसिड का. एनर्जी किस फॉर्म में निकली? जीडीपी के पास गई, फिर जीटीपी और अल्टीमेटली एटीपी बन गया. यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो एनर्जी जीडीपी को देते हैं, एटीपी को नहीं देते. दैट इज द रीजन. सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, जितने भी रिएक्शंस पढ़े हर जगह जब हाइड्रोजन निकला, द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज एनएडी, बट एट दिस प्लेस द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज एफएडी and it gets reduced to FADH2. Why? Reason being the enzyme succinate dehydrogenase. Fumaric acid से malic acid से oxaloacetic acid, again a hydrogen is released. So now what you have read in this is oxidation which involves removal of hydrogen. Okay. Now pyruvic acid कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है. तो 3 कार्बन 3 CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गए. FAD का फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. प्लीज रिपीट. FAD इज हाइड्रोजन कैरियर. पूरे प्रोसेस में देखो क्या मैकेनिज्म होता है. ये इक्वेशन है, ये लिखते हैं ना अपन, इसको सुनना ध्यान से. रेस्पिरेशन में क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलेंगे. पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए 1 2 3 कार्बन बाहर निकल गए. हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और हर जगह क्या निकलेगा? ये जो हाइड्रोजन है ये निकलेगा 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में. तो हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? NAD. तो 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन भी धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे. देखो पायरुविक एसिड के 3 कार्बन तो यहां तक बाहर निकल गए. आगे के रिएक्शंस क्यों होंगे? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को रीजेनरेट करने के लिए और बचे हुए हाइड्रोजन को भी रिलीज करने के लिए. ठीक है. अब क्वेश्चन. अब नाउ लुक एट द साइकिल. डोंट ड्रॉ इट नाउ. लुक एट द साइकिल. आई एम आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चन. फर्स्ट ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन. इफ यू आर श्योर यू हैव अंडरस्टूड देन यू कैन ड्रॉ. ओके. पहला क्वेश्चन. इफ वन पायरुविक एसिड एंटर्स द साइकिल, how many decarboxylation reaction occurs? If one pyruvic acid enters the cycle, how many decarboxylation? 3, not 2, it's 3. Okay. Decarboxylation मतलब CO2 का बाहर निकलना. ठीक है. Second question. If one pyruvic acid is oxidized, how many dehydrogenation reaction occurs? सबके आंसर गलत है. किसी ने अभी तक मेरा क्वेश्चन, हाँ अब सही आए हैं. 5 जिन बच्चों ने आंसर लिखा है उनका आंसर करेक्ट है, बाकी सबके गलत है. 5 कहाँ? हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5. मैंने क्रेब साइकिल वर्ड नहीं कहा है, मैंने पायरुविक एसिड वर्ड कहा है. आई हैवंट आस्क्ड यू क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रेब साइकिल. मैंने पायरुविक एसिड कहा है. जब मैं पायरुविक एसिड बोलूंगी, क्वेश्चन में पायरुविक एसिड लिखा होगा मतलब वहां से काउंट करोगे, यानी लिंक रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे. अब दूसरा क्वेश्चन. फॉर वन क्रेब साइकिल हाउ मेनी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन अकर्स? फॉर वन क्रेब साइकिल हाउ मेनी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन अकर्स? 4. एक बच्चे ने आंसर 2 दिया है. क्रेब साइकिल बेटा डिहाइड्रोजनेशन, एक जगह, 2 जगह, 3 4 डिहाइड्रोजनेशन. एट हाउ मेनी प्लेसेस NAD इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर? एट हाउ मेनी प्लेसेस NAD is hydrogen acceptor? 3. At how many places FAD is hydrogen acceptor? 1. I'm talking about Krebs cycle. So it is 1. ठीक है. रिएक्शन मैकेनिज्म में जब भी ATP बनेगा तब उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या ट्रांसफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है. जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म में ATP बनता है उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ट्रांसफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. तो इस पूरे साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में कितने ATP बन रहे हैं? 1. वहां पे एक ही बन रहा है ना. ठीक है. For now listen to the question.
For complete oxidation of one glucose molecule, Krebs cycle turns how many times? क्वेश्चन रिपीट करूं? क्या आंसर दोगे? आंसर 2 करेक्ट। 2 बार। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। एक पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन से के लिए एक बार साइकिल घूमेगी, 2 पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए 2 बार साइकिल घूमेगी। सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी और कैलकुलेशन भी पूछूंगी, पहले इसे बना लो। नाउ यू कैन ड्रॉ दिस। एनसीईआरटी में शायद एक आध स्टेप कहीं मिसिंग है, तो यू जस्ट ड्रॉ दिस। इसको बना लो पूरा। हो गया? डन? ओके। अब जो क्वेश्चंस है, जीटीपी डायरेक्टली एटीपी में फॉर्म क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस स्टेप पे जो एंजाइम है, वो जो एंजाइम है, दैट एंजाइम इज एसोसिएटेड विद जीटीपी कॉम्प्लेक्स, जीडीपी कॉम्प्लेक्स। जीटीपी, NADH2, FAD के फुल फॉर्म्स, आई एम राइटिंग दोस टर्म्स, मैं लिख रही हूं अभी। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? फॉर कंप्लीट oxidation of one pyruvic acid through Krebs cycle। जब पायरुविक एसिड लिख दिया, मतलब ये वाला भी गिनेंगे, ठीक है? पायरुविक एसिड थ्रू Krebs cycle, अल्फा कीटो इज SC, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड,
5 कार्बन, अच्छा ऐसी नहीं है, 5 कार्बन है, ठीक है। जीटी में 3 फॉस्फेट है, एडीपी में 1 फॉस्फेट, तो माइनस होगा। नहीं बेटा, कैसे लिखा है मैंने, मैं बता रही हूँ ये। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 पायरुविक एसिड थ्रू क्रेब्स साइकिल, 3 decarboxylation reaction and 5 dehydrogenation occurs. कितने? 3 decarboxylation and 5 dehydrogenation occurs. So 3 decarboxylation reaction occurs and 5 dehydrogenation reaction occurs. Okay. At one step or one reaction, we can write. At one reaction, substrate level phosphorylation occurs and 1 ATP is synthesized. कैसे बना एटीपी? पहले क्या हुआ, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा और बन गया जीटीपी। अब ये जीटीपी अपनी एनर्जी किसको दे देगा? एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और क्या बनाएगा? एटीपी प्लस जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस तरह से हो गया। आ गया समझ में बैलेंस? सिर्फ एनर्जी, फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी ट्रांसफर हुई। ओके, लिखा? तब कर दो वेट। For complete oxidation of 1 glucose molecule, for complete oxidation of 1 glucose molecule, रेस्पिरेशन में एटीपी कब यूज होगा? रेस्पिरेशन में एटीपी बनेगा कि यूज होगा? रेस्पिरेशन में एटीपी बनेगा या रेस्पिरेशन में एटीपी यूज होगा? सिंथेसिस होगी ना, सिंथेसिस। जीडीपी वाला रिएक्शन समझ में नहीं आया? सिंपल है, जीडीपी पहले एनर्जी लेता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के जीडीपी बना लेता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। देन जीडीपी टूटेगा, एनर्जी इसके पास गई, ये दोनों जुड़कर एटीपी बना लेंगे और जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज सच रिलीज हो जाएगा। ठीक है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, Krebs cycle turns 2 times। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार टर्न होगी? क्रेब्स साइकिल विल टर्न 2 times फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। या यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनेगा तो ये कोएंजाइम में रिलीज हो जाएगा। अब ये जो कोएंजाइम लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ? COA निकला। ये COA यहाँ पे यूज होगा ना,
यहाँ पे कोएंजाइम एक कंज्यूम हुआ और इस स्टेप में फिर से कोएंजाइम में रिलीज हुआ, तो ये तो अंडरस्टूड है। यस बेटा, इसका काम सिर्फ एनर्जी लेके इसको देना था, कपल्ड रिएक्शन होता है। ओके, so for complete oxidation of one glucose molecule, Krebs cycle turns how many times? Krebs cycle turns 2 times. Krebs cycle turns how many times? 2 times. ठीक है, अब कोई अगर अपन पूरी एनर्जी समरी लिखे, नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली, जब भी अपन डायरेक्टली लिखते हैं ना, मतलब ट्रांसफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, एक साइकिल में कितने एटीपी बन रहे हैं? 1, दैट इज 1 एटीपी। ओके, दिख रहा है वो सबको लिखा हुआ? इज दैट विजिबल? 1 एटीपी, एक के लिए बोल रही हूँ। नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड थ्रू NADH2। नाउ एक चीज यहाँ पे भी बताऊंगी, सिर्फ सुनो कैसे क्यों, वो सब इसके बाद वाला जो स्टेप पढ़ेंगे ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वहां पे समझ में आएगा। नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड थ्रू NADH2, एक NADH2 जब ETS में अपना हाइड्रोजन देता है तो उससे 3 ATP की सिंथेसिस होती है। 1 NADH2 through ETS synthesizes 3 ATP। ये for the time being you have to learn this, remember कैसे, where, how, why, everything will come in next part, that is ETS and oxidative phosphorylation. 1 in NADH2 synthesizes how many ATP? 3, तो 1 2 3 4, कितने NADH2 बन रहे हैं? 4, 4 into 3, that is 12 ATP. 4 into 3 is 12 ATP. So number of ATP synthesized through NADH2 is 4 into 3, that is 12 ATP. Okay. Next, number of ATP synthesized through FADH2, एक FADH2 जब ETS में अपना हाइड्रोजन देगा तो वो 2 ATP बनाएगा। यहां कितने FADH2 बन रहे हैं? 1, so 1 into 2, that is 2 ATP. So total number of ATP synthesized कितने हो जाएंगे? 15 ATP। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? 1 pyruvic acid, ओके, फॉर 1 ग्लूकोज कितने ATP? 15 into 2, that is 30 ATP। एक ग्लूकोज के लिए कितने ATP? 15 into 2, that is 30 ATP are synthesized। 30 यहाँ पे बन रहे हैं, 8 कहाँ पे बने? ग्लाइकोलिसिस में बने। टोटल सिंथेसिस कितनी हो गई? 38 हो गई। ठीक, लिख लो ये।
मॉड्यूल में लिखा है 4 डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मैं वो भी बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम पायरुविक एसिड, लेकिन अगर सिर्फ क्रेब्स साइकिल लिखा हो तो 1 2 3 4 सिर्फ ये गिनेंगे, मैंने वहां पे लिंक रिएक्शन इंक्लूड कर दिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर आर फ्रॉम कैलकुलेशन, या इजी है कैलकुलेशन, इतना डिफिकल्ट थोड़ी नहीं है। यहां तक कोई भी डाउट? टोटल नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज फॉर 1 ग्लूकोज, जब पूरा ग्लाइकोलिसिस भी इंक्लूड करेंगे तो फिर 38, पायरुविक एसिड 15। ना देखो, दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लिसन, जो तुम्हारा डाउट है ना दैट विल बिकम क्लियर, जस्ट लिसन टू द क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ ATP synthesized for complete oxidation of 1 pyruvic acid, मैंने लिखा है यहाँ पे 15, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ATP synthesized for 1 Krebs cycle, किसी ने भी सही नहीं दिया आंसर, नहीं 12, यस 12। अरे जब क्रेब साइकिल की बात करेंगे ना अपन सिर्फ ये देखेंगे, विल बी काउंटिंग दिस, ये वाले 3 माइनस कर देना 15 में से, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12। इफ वी माइनस 3 माइनस करके बताओ 14 कैसे होंगे, ये 3 कम हो गए ना सीधे सीधे, ये वाले लिंक रिएक्शन नहीं छोड़ेंगे। इफ वी टॉक अबाउट क्रेब साइकिल देन यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन छोड़ेंगे ना बेटा, ओके। अब ये मिटा दूं, फुल फॉर्म लिख दूं सारे, साइकिल सबको समझ में आ गई, कहीं कोई कंफ्यूजन? सब FADH2, ये तो बोला ही नहीं ना, देखो हाइड्रोजन किसी के पास भी जाए बट वो है तो पार्ट क्रेब साइकिल का, एसिटाइल को एंजाइम है, क्रेब साइकिल है तो ये क्वेश्चन में पायरुविक एसिड लिखा है तो ये 3 भी ऐड कर देंगे। फुल फॉर्म्स, NAD nicotinamide adenine dinucleotide, FAD flavin adenine dinucleotide, GDP guanosine diphosphate, that is GDP. GDP is guanosine diphosphate, okay. ये दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन carrier, these are hydrogen carrier,
Krebs cycle clear? Fourth part, ETS and oxidative phosphorylation. Electron transport system, शॉर्ट में उसको ETS, चेन भी बोल सकते हैं ETC, and oxidative phosphorylation. देखो, इस कंसेप्ट को समझने से पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर उनका आंसर समझेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन, NAD और FAD का रोल क्या है? Why NAD and FAD are involved? ETS बहुत इजी है, पूरा कंसेप्चुअल है. If you understand these 4 questions, then the things become very easy. First question, रोल ऑफ NAD एंड FAD. वाई NAD एंड FAD आर इन्वॉल्व? उनके बिना काम नहीं हो सकता है क्या? उनका रोल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, वाई ETS occurs? व्हाट इज द रोल ऑफ ETS? थर्ड क्वेश्चन, वेयर ETS occurs? फोर्थ में आएगा हाउ ETS occurs. तो ये 4 क्वेश्चन जो है ये मेन कंसेप्ट है एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर मैकेनिज्म. ओके, कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन. क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट वी आर रीडिंग? एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो फार व्हाट वी हैव स्टडीड, क्या कहीं भी अभी तक ऑक्सीजन आया? नहीं आया. क्या देखा? रिएक्शन में C और O2 CO2 के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं. पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है तो 3 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहे हैं और एक ग्लूकोज के लिए 6 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहे हैं और 6 CO2 निकल रहा है. ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है. अब हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल रहा है? क्या मॉलिक्यूलर स्टेट में हाइड्रोजन निकल रहा है? ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हर जगह हो रहा है. अभी तक व्हाट वी हैव स्टडीड? यस, नहीं, वी हैव स्टडीड ऑक्सीडेशन बट कहीं भी ऑक्सीजन नहीं आया अभी तक. तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में हो रहा है? डीहाइड्रोजनेशन. सो यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ डीहाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है. ठीक है, क्या हाइड्रोजन इस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? इज हाइड्रोजन रिलीज्ड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म? नो, नॉट पॉसिबल. अगर निकलता तो गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाता. फिर हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हुआ? हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाइड्रोजन. एटॉमिक स्टेट 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाइड्रोजन. यस, एटॉमिक स्टेट में तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ना. क्या किसी भी रिएक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो सकते हैं? सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं. क्या ऑक्सीजन डायरेक्टली इस हाइड्रोजन को लेकर वाटर बना सकता है? इज दैट पॉसिबल? नो, because hydrogen combines with oxygen to form water, that is very high energy requiring reaction. तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते. ऑक्सीजन भी इस इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता. तो इन्हें कौन लेता है? This hydrogen release is taken up by
NAD, which forms NADH2, and FAD, which forms FADH2. ये क्या है? These are hydrogen carriers. Because oxygen cannot directly take up the released hydrogen, NAD and FAD are hydrogen carriers. So these are hydrogen carriers which takes up the released hydrogen and transfer it to oxygen. तो आई थिंक जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था, रोल ऑफ NAD एंड FAD, व्हाई NAD एंड FAD पार्टिसिपेट्स, दैट इज क्लियर. यस, ये समझ में आ गया. तो विल गो टू सेकंड क्वेश्चन. दिस वन इज क्लियर. ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्टेट में हाइड्रोजन नहीं निकलता, इस स्टेट में एटॉमिक स्टेट में निकलता है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं हो सकते. मॉलिक्यूलर स्टेट में रिलीज नहीं होता. हाइड्रोजन गैस थोड़ी नहीं निकलती रिएक्शन में. ग्लूकोज टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्या? नहीं निकलती ना. ठीक है, आयनिक स्टेट में निकलेगा. फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो सकते. ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं ले सकता. तो ये कैरियर्स होते हैं. इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ इतना होता है कि रिएक्शन में हाइड्रोजन को लेना और किसको ले जाकर दे देना? ऑक्सीजन को ले जाकर दे देना. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फंक्शन ऑफ NAD एंड FAD, दैट इज क्लियर. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ETS क्या होता है, क्या जरूरत है? अब ये जो NAD है, NADH2, और ये जो FADH2 है, इनका काम क्या है? इस हाइड्रोजन को, और वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा ना. किसको देना? ऑक्सीजन को देना. मेरे पास ये पेन है. मैं जैसे इमेजिन कर रही हूँ कि क्लासरूम है, तुम लोग सारे बच्चे बैठे हुए हो, और फर्स्ट बेंच पे, सेकेंड, ऐसे करके लास्ट बेंच पे स्टूडेंट है. किसका नाम लूं? ध्रुव का नाम ले लेती हूँ. लास्ट बेंच पे ध्रुव बैठा हुआ है और मुझे ये पेन ध्रुव को देना है. मेरे पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, मैं यहाँ से इस पेन को फेंकूंगी सो दैट ध्रुव कैन कैच. क्या क्या नुकसान? एनर्जी ज्यादा चाहिए, चांसेस कि ये वहां एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाए वो भी कम हो जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, डू आई हैव एनी अदर ऑप्शन? यस, पास खेलूंगी मैं. मैंने जस्ट मेरे आगे बैठे बच्चे को ही दे दिया, फिर उसने पीछे पास किया, फिर उसने पीछे पास किया, एंड इट गोज ऑन. कौन सा ज्यादा इजी और इफेक्टिव होगा? पासिंग. थ्रो वन वोंट बी इजी, पासिंग. ठीक है, पासिंग वन विल बी इजी. तो यहां पर वही कंसेप्ट लगता है. थ्रो मेथड फास्ट है, लेकिन चांसेस क्या है? अब अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं कि थ्रो मेथड क्यों नहीं. NAD को इलेक्ट्रॉन देना है इसको. अब तुम लोग ने एक वर्ड पढ़ा है या नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, आई डोंट नो. मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में उसका मीनिंग बताती हूँ. रेडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेना, रिडक्शन. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वेरी इजी लैंग्वेज. तुम लोग पढ़ोगे, एक वर्ड आएगा रिडॉक्स पोटेंशियल, यू विल बी रीडिंग अबाउट रिडॉक्स पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन. सो लेते वक्त और देते वक्त, दोनों के वक्त एनर्जी की जरूरत होती है. दैट एनर्जी, क्योंकि डिफरेंस है ना, एनर्जी डिफरेंस है. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल तुमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को, एटम को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी चाहिए. तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसे रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं. You'll be reading in detail. अभी फॉर द टाइम बिंग मीनिंग समझ में आया. इसकी वैल्यूज होती हैं. NADH2 जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है -0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और FADH2 जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है -0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है +0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ जस्ट सी द डिफरेंस इन रिडॉक्स पोटेंशियल. ये माइनस में है, प्लस में है, यानी थ्रो वाला मेथड काम नहीं करेगा.
थर्मोडायनेमिकली ये एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक जंप लगाकर ऑक्सीजन के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता. इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी, वो लेगा पॉजिटिव, ये देगा एनर्जी. तो एनर्जी ये पढ़ोगे बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में, 12th में है शायद. you'll be studying. जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. वो एनर्जी में डिफरेंस कितना ज्यादा है. ये डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से डायरेक्ट ट्रांसफर इज थर्मोडायनेमिकली नॉट पॉसिबल. NaDH2 FaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऑक्सीजन को नहीं दे सकते. तो फिर ये कैसे देते हैं, एक कैरियर की चेन अकर करती है. पास पास खेलेंगे, ये डायरेक्ट थ्रू मेथड नहीं होगा. NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4. NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन 1 को देगा, 1 इसे धीरे से आगे पास कर देगा, फिर ये इसे आगे पास करेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचेगा तो इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट हो जाता है, और एक एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, ये क्वेश्चन सारे बच्चों ने हर बैच में पूछा है. मतलब पेशेंस लेवल हर बैच के बच्चों का बराबर है कि कॉम्प्लेक्स 2 कहां गया. मैंने नहीं लिखा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख रही हूँ कॉम्प्लेक्स 2. यहां होता है कॉम्प्लेक्स 2. क्योंकि FaDH2 का रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, FaDH2 इलेक्ट्रॉन 1 को नहीं देता, वो सीधे 2 को देगा, 2 फिर 3 को देगा, फिर 4 से होता हुआ ऑक्सीजन तक जाएगा. इस तरह से मूवमेंट होता है क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल में डिफरेंस है. तो दिस चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स which carries electron from reduced NaDH2 and FaDH2 to oxygen constitutes electron transport system. Now I think I have answered my second question. What is the need of ETS? Because direct transfer is thermodynamically not possible. ये वैल्यू तुम लोगों को 12th की बुक्स में नहीं मिलेंगी. ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, लेकिन इसके बिना समझ में नहीं आता है. Redox potential of O2 plus 0.82 electron volts. ओके, ठीक है. तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं था, इसलिए सीरीज ऑफ कैरियर अकर्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लोअर redox potential to higher redox potential which transfers electron or hydrogen to oxygen. तो फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, terminal electron acceptor. Okay, so why ETS आकर का आंसर, reduced NAD and FAD cannot transfer their hydrogen or electron to oxygen directly. Thus, a series of electron carrier occurs organized in the form of four complexes, organized in the form of four complex from lower redox potential to higher redox potential. Organized in which order? Lower redox potential to
higher redox potential. So reduced NAD and FAD cannot transfer electron to oxygen directly. Thus, a series of electron carrier occurs, organized in the form of 4 complex from lower redox potential to higher redox potential. From lower redox potential to higher redox potential. This series of complex constitutes ETS. ये इतना ही लिखना है, जितना मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ना वही लिखना है ना? मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगी, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा यू हैव टू राइट दैट ओनली. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर इससे समझ में आ रहा है. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा. ये सब नोट करना है. आई वोंट बी मेकिंग, लिख दिया मैंने बेटा, इतना ही रिक्वायर्ड है. फाइनली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अभी और पढ़ेंगे. व्हाट एक्ट एज टर्मिनल ऑक्सीजन, एंड में इलेक्ट्रॉन लेने का काम क्या कौन कर रहा है? ऑक्सीजन. ये सब तो पढ़ेंगे अभी. ये तो हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाई ईटीएस. थर्ड क्वेश्चन, वेयर ईटीएस अकर्स. ये साइड लिखा सबने, कर दूं रब. अब ईटीएस कहाँ प्राकर करती है? ईटीएस occurs in inner membrane, in oxysomes present in inner membrane, organized as 4 complex. और ETS कहाँ आकर करती है? ETS occurs in inner membrane organized as 4 complex. ETS कहाँ present? ETS occurs in present in inner membrane, organized as 4 complex. Complex 1, NADH2 dehydrogenase. ठीक है. Complex 2 is FADH2 dehydrogenase. Complex 3, cytochrome B, cytochrome C1, cytochrome C. Complex 4, cytochrome A, A3, and an enzyme cytochrome oxidase. Okay. Cytochrome A, A3, and an enzyme cytochrome oxidase. Okay. यहाँ तक लिया, लिखा सबने. अब हाउ, क्वेश्चन क्या क्या हो गए? व्हाई, वेयर, ये भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है हाउ. तो विल बी रीडिंग अबाउट दिस.